Good morning everyone and a warm welcome to our chief guest Dr. R.C. Patel sir, Vice Chancellor of IIT Gandhinagar, and our Managing Trustee Sashal, Campus Director Prakash Mehta sir, CBSE Principal Reena ma'am, GSE ma'am, Higher Secondary Coordinator Nivedita ma'am, pre-primary headmistress Sudhi ma'am, and all dear ones present over here. Today we have gathered here for one noble initiative, that is unveiling the 77th issue of Maitri Setu, tight concern and commitment. We are deeply honored to have among us our chief guest. Sir, your presence truly enriches this occasion with wisdom and inspiration. Let us begin this auspicious event by invoking the blessing of Almighty. So now I invite Ms. Dhanashri ma'am, our music teacher, to lead us in the aura of peace and positivity through her prayer. नैतिकता की सुर सरिता में जन जन मन पावन हो, संयममय जीवन हो, संयममय जीवन हो। नैतिकता की सुर सरिता में जन जन मन पावन हो, संयममय जीवन हो, संयममय जीवन हो। अपने से अपना अनुशासन, अनुव्रत की परिभाषा, वर्ण जाति और संप्रदाय से मुक्त धर्म की भाषा। छोटे छोटे संकल्पों से मानस परिवर्तन हो, संयममय जीवन हो, संयममय जीवन हो। मैत्री भाव हमारा सबसे प्रतिदिन बढ़ता जाए, समता सह अस्तित्व समन्वय नीति सफलता पाए। शुद्ध साध्य के लिए नियोजित मात्र शुद्ध साधन हो, संयममय जीवन हो, संयममय जीवन हो। विद्यार्थी या शिक्षक हो, मजदूर और व्यापारी, नर हो नारी बने नीति में जीवनचर्या सारी। कथनी करनी की समानता में गतिशील चरण हो, संयममय जीवन हो, संयममय जीवन हो। नैतिकता की सुर सरिता में जन जन मन पावन हो, संयममय जीवन 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 हो। ऐसा। Thank you so much ma'am for this soothing and blissful beginning. Now friends, you know what? Our chief guest is a guiding light of knowledge and leadership. Our guest of honor has inspired countless leaders and educators. So, to introduce our esteemed guest, I invite Adiba ma'am, teacher of higher secondary section, to throw some light on his journey. A very good morning.
to one and all present here, respected chief guests, respected Shah sir, Prakash sir, and all the dignitaries on the dais. It is my immense pleasure and honor to introduce our distinguished chief guest, Dr. Ramesh Chaturbai Patel, a visionary educationist, inspiring academic leader, and true mentor to countless teachers and students. Sir's illustrious career spans over 4 decades dedicated to advancing education at both institutional level and state levels. Sir has earned his PhD in education from the Maharaja Sayaji Rao University of Baroda, MS University, where he has held several distinguished positions including Professor, Department of Education, Faculty of Education and Psychology, Dean, Faculty of Education and Psychology, Head of Department of Education, Controller of Examinations, Honorary Director, Institute of Advanced Studies in Education. In addition to these roles, Sir has also served as a nodal officer for teacher education initiatives, playing a crucial role in shaping educational policies and coordinating policies for teacher training across the state. His leadership and guidance in this capacity strengthened the standards of teacher education and impacted countless educators. Currently, he is the Vice Chancellor of Indian Institute of Teachers Education, Gandhinagar, a premier institute shaping the future of teacher education in India. Under his visionary leadership, IITE has become a center of excellence for research, pedagogy, and teachers' training. Beyond his remarkable academic and administrative achievements, Sir is also admired for his humility, mentorship, and unwavering dedication to education. His guidance continues to inspire students, teachers, and academics alike. Sir, your career is a shining example of scholarship, leadership, and service. We are deeply honored by your presence today with us on the special occasion of unveiling of our annual school magazine, Maitri Setu. Now, I would like to request respected Shah sir to welcome Thank you, Amita ma'am, for acquainting us with the remarkable journey of our honorable chief guest. Now, each issue of Maitri Setu is a bridge that connects heart, ideas, and aspirations. To tell us more about the special edition of Care, Concern, and Commitment, I invite Mrs. Nivedita ma'am, Coordinator of Higher Secondary Section, to throw some essence about this edition. Good morning, esteemed guest, Dr. R.C. Patel sir, respected Shah sir, respected Prakash sir, all sectional heads, and all dear dignitaries and my dear teachers. Today, it's an honor for me to make you enlightened with the 77th issue of our school magazine, Maitri Setu. As we all know, Amity School always endeavors to inculcate reading habits among the teachers and the students and different stakeholders of our school. In very many ways, we have always been taking different types of initiatives to develop the skill of reading, which is one of the basic criteria of mental and social and emotional development
of people who are directly or indirectly associated with the educational enhancement. As the name suggests, that Maitri Setu means the bridge of friendship. So we generally extend the welcome to contribute their materials in the form of written content to enrich different editions of our Maitri Setu, which is generally based on a particular theme. This time, the annual theme, which we are following throughout the academic year 2025-26, has been care, concern and commitment, which is the basic requirement of the society at today's point of time. If we think about care, we need to take care of everything that is around us. Our students, our health, our well-being, all the members with whom we are associated in various levels of life, walks of life, professional, personal, in every respect. So care is the first and foremost requirement for staying happy and staying healthy. But just by saying that we care for you is not enough. We have to be concerned about the requirements so that the ultimate end result is care. And just by saying that we care and by understanding what are our requirements, that is being concerned, also doesn't end the show, because we have to be committed towards bringing those changes in our life and the people who are associated with us. So with this thought, the year was proceeding, and then we came ahead with writing different types of written materials, as I said, and the Maitri Setu 77th issue was ornated with 50 different articles in the form of short pieces, in the form of poems, which either have been written or collected or compiled from various sources by all the people who are associated with our school, including the teachers, including the students, and it has made the enrichment of our Maitri Setu very highly. It has enriched our Maitri Setu. And then the Maitri Setu is also a record or a testament of different activities and programs which we have taken throughout the academic year. Of course, we are not at the end of the academic year, but since when the last Maitri Setu issue number 76 had been published, whatever activities and achievements our students and school has proclaimed, we have kept a record of all those reports, and the write-ups will make all of us aware of the progress and the growth of our school. The Maitri Setu issue number 77 has also been ornated with different academic achievements of our students in the board examinations, in the very many capacities. They have come with shining colors, our students, and we have displayed their achievements also in the Maitri Setu. Our esteemed guests who have come forward to visit our school and made us enriched, we have acknowledged their contributions through different pages of our Maitri Setu, that is our school magazine. So without taking much of your time, because I'm not going to be disclosing everything in front of you right now is going to spoil the show, because we will be getting the Maitri Setu unveiled by the hands of our esteemed guest, Dr. Rasi Patel sir, and then we would go through the pages of the book, holding it in our hands, and it will be our greatest pleasure to make our
mission of the year, that is care, concern and commitment, successful, bringing the things into practicality, because just writing is not enough, just speaking is not enough, just expressing our views is not enough. We have to put the things into practice. I believe we the Amidians are going to be successful in playing a vital role in bringing a change to our society by care, concern and commitment. I would request our esteemed guest, so it's a great pleasure for all of us that our efforts have bloomed in your hand. Thank you so much, ma'am, for beautifully capturing the event. And congratulations to our entire team for their creativity, care, commitment reflected in each and every page of this edition of Maitri Setu. Now, Maitri Samepye Sarvabhutanam Bhavatu Nama. Let friendship and goodwill flow among all beings. May this be the part of spirit of our magazine, our work, our mission as an educator. And now, we now invite our chief guest, Dr. R.C. Patel sir, to share his valuable insight and word of wisdom with us. Shri Ranchor Bhai sir, I call him as Ranchor Bhai only. I think we know each other for last, I don't know, but more than a decade. Prakash Bhai, supervisor, principals of all the sections of all the schools, and my dear, lovely, lovable, loving teachers. Yeah, I wanted to see this smile on your face. मैं कब से यहाँ बैठा था, मैं तो सोच रहा था निकल जाऊँ यहाँ से. Looking at your face, I was thinking, I don't know, the early morning also, because we need energized teacher, and we means country. इसीलिए मैंने बोला you all are lovely, lovable, loving teachers. At the outset, let me congratulate Ranchor Bhai and the entire team for thinking of this kind of sessions for you. પહેલા એટલું ગુજરાતીમાં કહું કે ગુજરાતી હિન્દી ઇંગ્લિશ ગુજરાતી મીડિયમના પણ ટીચર છે હિન્દી ઇંગ્લિશ ફાઇન. But then, I make sure that whatever I speak in Hindi, of course I am not good at Hindi, this I try to translate it into English. So, टीचर्स का इम्पोर्टेंस बताने की कोई जरूरत नहीं है, वी ऑल नो. कोठारी कमीशन, आप सब लोगों ने बीएड किया, कोठारी कमीशन तो बहुत बार पढ़ा होगा बीएड, अगर रेगुलर मोड में बीएड किया हो तो. Because in India we have also another facility, non-attending BEd colleges where neither students nor teachers attend. They only get degree. तो अगर वो BEd ऐसे किया है तो आपने कोठारी कमीशन का नाम बहुत बार सुना होगा. It's a huge bulky report, and it starts with a beautiful sentence. आप में से किसी को याद है? I want to make it interactive. मैं सिर्फ यहाँ से बोलूँगा ऐसा नहीं होगा. प्रश्न तो पूछता रहूँगा मैं. किसी को याद है उसका? कोठारी कमीशन का पहला सेंटेंस. It reads this way: the destiny of our country is being shaped in her classroom. I repeat, the destiny of our country is being shaped in her classroom. देश का भविष्य क्लासरूम से बनता है, क्लासरूम में बनता है. और हम सबको मालूम है क्लासरूम में सिर्फ
स्टूडेंट्स और टीचर, इनके अलावा और कोई नहीं होता है ना। तो ये वही सब स्टूडेंट और टीचर साथ में मिल के देश का भविष्य बनाता है। और टीचर क्योंकि थोड़ा उम्र में ज़्यादा है, एजुकेशन भी थोड़ा ज़्यादा है इनका, तो ऑब्वियसली हैज़ टू प्ले अ वेरी वाइज रोल, कीपिंग इन माइंड के बच्चों को कहाँ ले जाना है। ठीक है, मैं आगे चलूँ उससे पहले मैडम ने जो ब्यूटीफुल पोएम प्रेयर गाया उसमें से एक शब्द मैंने पकड़ा, बहुत अच्छा लगा मुझे वो, संयम रखना। और आफ्टर 2009 टीचर के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं 2009 क्यों बोला पता है किसी को? 2009 में एक एक्ट आ गया देश में जिसके अंदर कॉर्पोरल पनिशमेंट बैन कर दिया। पहले तो हमें वो फ्रीडम था, है ना, जिसको जितना चाहे उतना, बट देन आफ्टर 2009 वो नहीं है। और हमें मालूम है बच्चे पहले जैसे नहीं है, ज़्यादा अच्छे हैं, ज़्यादा एनर्जी वाले हैं, ज़्यादा सोच है उनके पास, सब कुछ ज़्यादा है उनके पास। फिर उन बच्चों को संभालना और वो भी हाथ में छड़ी के बिना, तो वहाँ संयम रखना बहुत जरूरी है टीचर के लिए। मैं वो प्रेयर को आई वाज ट्राइंग टू रिलेट इट दिस वे कि अभी आपके लिए इट इज मोर इम्पोर्टेंट संयम रखना। और एक संयम कैसे रखना, अगर वो सीखना है तो हफ्ते में एक बार फास्टिंग करो, एक बार। मेरा अनुभव बताता हूँ, आप लोगों का शायद वही हो या उल्टा भी हो। हम जिस दिन फास्ट रखे ना उसी दिन ज्यादा और अच्छी अच्छी चीज खाने का मन होता है। तो वो फास्टिंग आपको सिखाएगा कि कैसे संयम रखना है। लेकिन खैर गुजराती वाला फास्ट नहीं है। गुजराती में तो मेरे दो बेटे हैं, उसमें अभी एक जो छोटा बेटा है वो एकादशी का फास्ट रखता था। उस दिन 11 एकादशी 11 प्रकार के व्यंजन बनते हैं, तो वो वाला फास्ट नहीं, संयम सिखाएगा। अगर इसको देखें तो मैं सीरियस नोट, एंड इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर टीचर। मैं जो बता रहा हूँ बिकॉज हमें मालूम है क्लास में when we get with students we come across various kind of situations, some of which are very difficult to handle. किसी किताब में किसी ने नहीं पढ़ाया, उस प्रकार की सिचुएशन आ जाती है। तो वहाँ पे इट इज ऑल द मोर इम्पोर्टेंट फॉर टीचर कि संयम रख के पूरा जो अनुभव है जिंदगी का उसको यूज करके बच्चों को संभालें। ठीक है ना। वो आज वाला मुझे जो करना है, आई मे टेक मोर देन एन आवर, बट इट विल डिपेंड है आप लोग कितने एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट करते हो। अब उसके लिए प्रेजेंटेशन तो यहाँ पे ही है, तो आप लिखोगे नहीं तो चलेगा। तो प्लीज ट्राई टू फोकस ऑन द ऑनगोइंग डिस्कशन। द टॉपिक दैट आई हैव चोजन इज NEP 2020। पहले प्रकाश सर ने मुझे बात दिया था कि केयर कंसर्न कमिटमेंट वाले में से कुछ ले लेना सर। फिर शायद रणछोड़ भाई से सूचना गई होगी कि नहीं सर को उनको जो बोलना है वो बोल दे दो। तो फिर मैंने सोचा कि अभी करंट टॉपिक ये है और बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें हम टीचर्स के लिए बहुत सारी बातें हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि लेट मी टॉक अबाउट दिस। एंड शायद आज मैं जो बोलने वाला हूँ देयर मे नॉट बी एनीथिंग न्यू, आपको शायद सब कुछ पता होगा। एंड प्रिज्यूमिंग दिस बिकॉज it has been now already 5 years after the implementation of NEP 2020 in our country. Exact date अगर देखें तो 29th जुलाई 2020 कंट्री ने अपनी एक आफ्टर इंडिपेंडेंस अपनी जो थर्ड एजुकेशन पॉलिसी है कंट्री ने एक्सेप्ट की। एंड अनलाइक ऑल अदर नेशनल लेवल डॉक्यूमेंट्स, this is a very tiny document, only 64 page. प्रकाश भाई उसका भी मेरे पास सॉफ्ट कॉपी है, मैं आपको बता देता हूँ, I will send it. Only 64 page document. तो आज तक कोई भी ऐसा नेशनल लेवल डॉक्यूमेंट इतना छोटा नहीं है।
So my first advice and homework for all of you will be, इसको पढ़े और बार बार पढ़े। जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार उसमें से कुछ नया पता चलेगा। Because had it been a bulky document, perhaps it would have been easier for us to understand. But ये बहुत छोटा है, only 64 page document, 27 chapters. उसमें से first 9 chapters are for school teachers, school and school teachers. उसके 9 chapters थे वो। अब ये प्रेजेंटेशन का जो स्लाइड भी है ना, मुझे बहुत अच्छी तरह से कहीं से मिला है। तो प्रेजेंटेशन बोर्ड में है ये, तो वो बेनिफाइंग लेंस आया है ना, और बैकग्राउंड, तो उसको आप देखो तो वो अच्छी तरह से ऐसे मिल गया मुझे वो कि बहुत कम चीज़ वहाँ पे नहीं, लेकिन बहुत बारीकाई से देखने की कोशिश करिए। तो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, अब आपको मैंने बताया कि दिस इज द थर्ड नेशनल पॉलिसी ऑफ कोर्स एजुकेशन। तो फर्स्ट एंड सेकंड कब आई, किसी को कुछ आइडिया है? मैंने बोला था प्रश्न पूछूंगा और आसान नहीं पूछूंगा, क्योंकि रंजू भाई ने बताया कि बहुत इंटेलिजेंट टीचर्स हैं। फर्स्ट एंड सेकंड कब आई पॉलिसी? थोड़ा जोर से बोलूँगा। 1968 Very good. 1986 वाह, एक्सेलेंट। फर्स्ट वॉज इन 1968 एंड दूसरा वो नंबर उल्टा कर दो 1986, और फर्स्ट और थर्ड का नाम भी सेम है। फर्स्ट भी NEP था, ये भी NEP है। 86 वाला NPE है, नेशनल पॉलिसी। क्योंकि हम तो टीचर है, जैसे अभी वो मैडम ने बताया था ना, सिंस लास्ट 4 decades आई एम इनटू दिस। तो पढ़ाना तो, और हमारे यहाँ तो MS यूनिवर्सिटी में तो BEd के क्लास में 100 बच्चे होते थे, और कभी कभी जब 2 डिवीज़न कंबाइन कर ले तो 200 बच्चे। तो वो क्लास लेने की मुझे तो अनुभव है इसके बिना। फाइन, तो पहली पॉलिसी थी, अब नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाए। पहली पॉलिसी थी 1968, उसके बाद आया 1986, और ये जो ट्रांजिशन भी मैंने इसीलिए लिया है, टीचर को है ना बोलने के बीच में थोड़ा पॉज चाहिए, तो वो जब तक स्लाइड जाएगी ना तब तक आपको थोड़ा पॉज मिल जाएगा, इसीलिए मैंने वो ऐसा ट्रांजिशन वाला लिया है। इसको बहुत डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, बट एक दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी। आपको मालूम है जब when we became independent in 1947, इसके बाद जब ये पॉलिसी आई, कंट्री हैड सेवरल इश्यूज। सबसे पहले तो वही था कि टू प्रोवाइड एजुकेशनल फैसिलिटीज टू ऑल द चिल्ड्रन ऑफ आवर कंट्री। सबसे पहले जो बड़ा चैलेंज था ना वही था, लैंग्वेज डिस्पैरिटी, लैंग्वेज का इश्यू, बहुत सारे इश्यू थे। तो सबसे पहला था कि इनको सभी को, वहाँ क्वालिटी वॉज नॉट द मेजर कंसर्न। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट क्वालिटी एजुकेशन, बट जब 68 में हम आए, अपनी जब पहली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनी, तो पहला मेजर कंसर्न था कि किस तरीके से देश के बच्चों को शिक्षा दी जाए। और वो भी आपको मालूम होगा, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 45 याद है किसी को? आर्टिकल 45 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, विच इज इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल, DP है यार। ये थोड़ी टेक्निकल चीज है, बट मैं मानता हूँ कि टीचर को ये मालूम होना चाहिए। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, ये रूल नहीं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल का मतलब स्टेट्स हैव देयर फ्रीडम, उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करें। इसीलिए आप अगर देखोगे आज भी इंडिया में अलग अलग स्टेट में लिटरेसी रेट एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज आर डिफरेंट। कुछ स्टेट आज भी बीमारू है, बीमारू जानबूझ के शब्द है, BMR स्टेट का नाम वहां से शुरू होता है। तो एजुकेशन के संदर्भ में कुछ स्टेट आज भी बीमारू स्टेट हम बोलते हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिस इज इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन। इसलिए उनको एक एक शब्द पकड़ के एक फ्रेज को वर्ड कॉइन कर दिया कि बीमारू स्टेट्स। ठीक है, गोइंग बैक टू आर्टिकल 45, आइडिया है किसी को? आर्टिकल 45 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
गुड, कुछ तो हाँ है। and early childhood also. Free and compulsory education to children below 14 years of age. And I think it's early child care also. बहुत सही बताया। एक ही चीज इसमें मिस हुआ है। There are three important aspects in this Article 35. एक है all the children of our country between the age group of 6 to 14, 6 से 14 साल के, इसीलिए ग्रेड 1 to 8। देखो 6 स्टैंडर्ड में बच्चा ग्रेड 1 में इधर एंटर करेगा, तो जब तक 14 एज होगी तब वो 8th ग्रेड में आएगा। तो all the children either between the age group of 6 to 14 or from class 1 to 8. So all the children of our country should be provided free and compulsory education. Free and compulsory education. और एक और भी उसमें राइडर है, that is within 10 years from the date of commencement of the proceeding. 26 जनवरी 1950, ये तो याद है ना, कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट किया। इसका मतलब फ्रॉम 26 जनवरी 1950 से 10 साल, तो बाय 1960 उस समय के भारत देश के 6 से 14 साल के हर एक बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देना था। आज तक भी अवर कंट्री इज स्ट्रगलिंग। आज तक वी केप्ट ऑन शिफ्टिंग द टारगेट। 60 में नहीं होगा, 70 तक करेंगे, 80 तक करेंगे, 90 तक करेंगे। बाय द टाइम वी केम अप इन 90s वी रियलाइज कि ये तो बड़ा मुश्किल टारगेट है, तो उसको एक काम करें, स्प्लिट कर दें। तो पहले सोचा ग्रेड 1 to 5 वाले बच्चों को एक बार पूरे देश के स्कूल में लेके आ जाए, एक बार वो होगा, उसके बाद 6 to 8 वालों को लाएंगे। तो टारगेट को स्प्लिट किया। अभी देखो जब नया मकान बनाते हैं तो टारगेट होता है ना, घर में सब कुछ लाना है, लेकिन इकोनॉमिकली फिजिबल ना हो, तो पहले सोचे जो मिनिमम लाना है वो लाएंगे, एक ही एसी रखेंगे, बाकी के एसी बाद में लाएंगे। होता है ना ऐसा। उसी तरीके से कंट्री ने ऐसा वो उस समय स्टैंड लिया कि पहले ग्रेड 1 to 5 को ही लाए, उसके बाद वालों को लाए। मैं थोड़ा डेविएट होता हूँ क्योंकि मुझे करना कुछ और है, लेकिन लगा कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं बताना शुरू कर दिया। बट फाइन, तो ये था। चलो नेक्स्ट स्लाइड। नेशनल इंटीग्रेशन भी इम्पोर्टेंट था। उस समय मालूम है देश बटा हुआ था, तो उसको सबको साथ में लेना था। ठीक है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी थी, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देना था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को भी एम्फेसिस देना था। और अगर उसको याद है तो वंस अगेन कोठारी कमीशन का एक और रिकमेंडेशन था। कोठारी कमीशन का रिकमेंडेशन ये था कि साइंस एंड मैथमेटिक्स शुड बी टॉट ऑन अ कंपल्सरी बेसिस फॉर फर्स्ट 10 years ऑफ स्कूलिंग। इसीलिए आज भी देखो ग्रेड 1 से 10th तक साइंस एंड मैथमेटिक्स वेदर बच्चों को पसंद आए या ना आए, तो साइंस एंड मैथ्स कंपल्सरी, वो यहाँ से उसका ओरिजिन है। और कोठारी कमीशन ने भी ये बोला था। नेक्स्ट, ये कुछ थे मेजर रिकमेंडेशन ऑफ फर्स्ट पॉलिसी। उसके बाद सेकंड पॉलिसी आई, कुछ चीज़ें वही रही। वैल्यू इंकल्केशन, इसको भी निकाल दो। नेक्स्ट में वैल्यू वाला आया। एक और चीज़ अलग आई थी इस समय 86 तक, क्योंकि पहले वो थोड़ा ठीक हो गया था, तो बोला अब वोकेशनलाइजेशन की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, यूनिवर्सलाइजेशन तो वो गोल 68 में भी था, 86 में भी है, आज भी है। बट बोला कि अब वोकेशनलाइजेशन की तरफ जाया जाए, थोड़ा क्वालिटी पे ध्यान दें। मैं इसको थोड़ा जनरली करता हूँ। ये आया, एक इम्पोर्टेंट था वो कि वोकेशनल एजुकेशन, और साथ साथ हायर एजुकेशन को भी इम्पोर्टेंस दिया जाए। कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ बहुत कम थी, आज तो खैर बहुत ज़्यादा हो गई है देश की। तो इसीलिए कॉलेज और यूनिवर्सिटी कम थी, तो ये ऑप्शन दिया जाएगी जो स्टूडेंट्स जॉब के साथ पढ़ना चाहे उनके लिए ODL बोर्ड में, ओपन डिस्टेंस लर्निंग बोर्ड में भी हायर एजुकेशन ऑफर किया जाए। फिर वो सक्सेस होने के बाद अब तो हमने
स्कूल में भी ओडियन बोर्ड शुरू कर दिया, मालूम होगा सबको, NIOS, है ना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, NIOS। और एक जमाना था कि NIOS और इग्नू के स्टूडेंट्स को बहुत सारी यूनिवर्सिटी इंक्लूडिंग MS यूनिवर्सिटी एडमिशन नहीं देते थे, बट देश में आज वो कंपलसरी है। NIOS भी देश की ही संस्था है, इग्नू भी देश की ही संस्था है। वहाँ से कोई भी स्टूडेंट आइदर वहाँ से 10th 12th करे या इग्नू से कोई भी प्रोग्राम करे, वो सबको वो डिग्री वैलिड है तो वो सबको वहाँ पे कोई भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा। नेक्स्ट, ये एक दूसरा फोकस यहाँ पे था अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन का। आपको मालूम होगा कि अप टू 2012 इन अवर कंट्री ECC के बारे में कोई पॉलिसी ही नहीं थी। 2012 में फर्स्ट टाइम ड्राफ्ट आया है। तब तक देखो कोई भी ECC वाला अपने घर में 2 कमरे खाली है उसमें एक प्ले सेंटर शुरू कर दो। अब पहली बार कुछ उसमें चेंज आने वाला है। नेक्स्ट, ये था 86 वाला, अब आया है 1920 वाली पॉलिसी। इसमें देर आर सर्टेन जनरल प्रिंसिपल के मतलब 5 और 6 है उसका डॉक्यूमेंट, उधर से मैंने लिया है, इसलिए नीचे रेफरेंस में लिखा है NEP डॉक्यूमेंट का पेज नंबर 5 और 6। कुछ उसके जनरल प्रिंसिपल्स है जो कोई भी एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन पर्टिकुलर और एंटायर कंट्री इन जनरल वो एप्लीकेबल है। ये जो मैं बता रहा था ना 9 चैप्टर्स है उसमें स्कूल एजुकेशन के। ये डॉक्यूमेंट आपके पास रहेगा। आज टुडे आई हैव नॉट स्पेंड मच टाइम ऑन दिस, तो दिस आर द 9 तो यहाँ एक है, 9 होना चाहिए, एक मैंने कहीं मिस किया होगा। 9 चैप्टर्स है इसमें, बाकी है इतने हायर एजुकेशन के, फिर कुछ और जेनरिक है 4 चैप्टर, और आखिरी में कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। तो इस तरीके से टोटल 27 चैप्टर्स है ये NEP के। अब आगे और स्ट्रक्चर मालूम है, अभी तक स्कूल का स्ट्रक्चर हमारा ऐसा है कंट्री में। जैसे मैंने पहले बताया था ECC लेवल पे नीचे कुछ है ही नहीं, ग्रेड 1 से शुरू होकर 10th तक एंड देन 11 एंड 12। अनलाइक दिस अभी जो नया स्ट्रक्चर आएगा वो 5+3+3+4। 5 में 3 years ऑफ प्राइमरी, प्री प्राइमरी, ग्रेड 1 एंड 2। अब जैसे इमेजिन करो, अभी हम जब इमेजिन भी करेंगे तभी भी आपको मुश्किल लगेगा कि प्री प्राइमरी के 3 उसके साथ ग्रेड 1 एंड 2 बच्चे बैठेंगे, एक सेक्शन हो गए जिसको हम बोलते हैं फाउंडेशन स्टेज। अब सिर्फ इतना रिस्ट्रक्चरिंग करने से कितनी चीजें और बदलेगी। टीचर्स की रिक्रूटमेंट बदलेगी, टीचर्स की ट्रेनिंग बदलेगी, सब कुछ बदलेगा ना। बट फिर भी एक है फर्स्ट 5 years वाला ये फाउंडेशन है, उसके बाद है प्रिपरेटरी ग्रेड 3, 4, 5, फिर मिडल है ग्रेड 6, 7, 8, और आखिरी वाला वो भी उतना ही डिफिकल्ट है टू इमेजिन, ग्रेड 9, 10, 11, 12। एक ही एकम हो जाएगा, सड़क एकम कहेंगे गुजराती में, तो वो ऐसे ही हो जाएगा 9, 10, 11, 12। अब इमेजिन करो जो टीचर यहाँ 9th में साइंस पढ़ाता है वो 12th में भी पढ़ाएगा। अभी तो डिफिकल्ट लगता है ना इमेजिन करना, बट फिर भी दिस इज नाउ गोइंग टू बी द फ्यूचर। कंट्री में एंटायर स्कूल सिस्टम इस तरीके से चेंज हो जाएगा। अब जैसे मैंने बताया कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है, कुछ नया मैं नहीं बताने वाला, बट फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला ये होलिस्टिक डेवलपमेंट। हम जैसे सब लोग करते ही है, बट फिर भी व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज आइडेंटिफाई करो कि एवरी चाइल्ड हैज यूनिक कैपेबिलिटी। और ये आइडेंटिफिकेशन में 2 चीज यहाँ लिखा है, नॉट ओनली टीचर्स बट इवन पेरेंट्स। टीचर्स एंड पेरेंट्स, ये डॉक्यूमेंट का वर्ड है, मैंने एक भी शब्द अपना नहीं लगाया। बोथ द टीचर्स एंड पेरेंट्स jointly they will identify the unique capability of each child. तारे जमीन पर पिक्चर याद करो, आमिर खान का, ईशान अवस्थी। कुछ दिनों बाद मदर ने तो एक्सेप्ट कर लिया, फादर फिर भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं थे।
इसीलिए बताया नॉट ओनली टीचर बट इवन पेरेंट्स, both of them should identify. Unique could be on both the extreme. बहुत अच्छा भी हो सकता है, बहुत अदर एंड में भी हो सकता है. तो ये जो उनकी कैपेबिलिटीज है या इनकैपेबिलिटीज, दे आर टू बी आइडेंटिफाइड एंड अकॉर्डिंगली नर्चर. तब जाके ही होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है. अब यहाँ इस तरीके से बताया है, बट पहले दोनों डॉक्यूमेंट में भी देखो ना, और गांधी जी भी बता देते डेवलपमेंट ऑफ 3H. याद आता है गांधी जी ने बताया था व्हाट आर दिस 3H? ये तो सिंपल क्वेश्चन है. हेड, हैंड और हार्ट. ठीक है ना, हेड, हार्ट एंड हैंड्स. ये तीन डेवलप करो, पूरा बॉडी डेवलप हो गया. साइकोलॉजी वाले इसको बोलेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट, अफेक्टिव डेवलपमेंट एंड साइकोमोटर. अनफॉर्चुनेटली ये सब जानने के बावजूद भी अनफॉर्चुनेटली our major emphasis is on development of cognition only. largely यही होता है ना, खास करके वही बस ये डेवलप कर लो, बाकी सब अपने आप आ जाएगा. बट ये तीनों का डेवलपमेंट बहुत जरूरी है. भी मुझे प्रकाश भाई ने बताया कि रणछोड़ भाई का एक इरादा ऐसा है कि कोई भी स्कूल प्लेग्राउंड के बिना नहीं हो सकता है. देखो आज भी आपको गुजरात में बहुत ऐसे स्कूल मिलेगी, देयर इज नॉट इवन 1 स्क्वायर मीटर लैंड इन द नेम ऑफ प्लेग्राउंड. खेलेगा कहाँ पे बच्चा भी? साइकोमोटर जो डोमेन है कहाँ से डेवलप होगी? तो वो डेवलप करने के लिए ये तीनों डेवलप करना बहुत इम्पोर्टेंट है. नेक्स्ट, तो एक चीज है कि होलिस्टिक डेवलपमेंट. वट एवर वी डू इन आवर स्कूल वी हैव टू ऑलवेज कीप दिस इन माइंड. It has always to be holistic development. ये एक थोड़ा बहुत सीरियस इशू है. I'll take some time for this. FLM क्या मालूम है? गवर्नमेंट स्कूल के हर एक टीचर को यहाँ नीचे दिख दिया है, तो पूछने का मतलब नहीं. फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी. फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी की डेफिनेशन दी है ये डॉक्यूमेंट में. यहाँ इसकी डेफिनेशन दी है डॉक्यूमेंट में कि इफ अ चाइल्ड इज एबल टू रीड विथ अंडरस्टैंडिंग, मैं समझाऊंगा इसको. इफ अ चाइल्ड इज एबल टू रीड विथ अंडरस्टैंडिंग एंड इज एबल टू परफॉर्म सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशंस, तो हम बोलेंगे कि उसमें FLM आ गया. क्या क्या बताया? पढ़े, और जो पढ़े उसको समझे, और सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इतना अगर कर सकते, और वो भी कब? बाय द एंड ऑफ ग्रेड 3. ठीक है, बहुत पहले हम अपेक्षा नहीं रखते. बाय द एंड ऑफ ग्रेड 3 अगर कोई भी बच्चा इतना कर ले तो हम बोलेंगे कि FLM हो गया, क्योंकि हम बी एबल टू अचीव FLM. ये क्या कोई बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशन है? इज इट अ वेरी ह्यूज एक्सपेक्टेशन? नहीं ना. नाउ द फैक्ट, ये जो रिपोर्ट में लिखा है वो कि फ्रॉम वेरियस गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंटल रिपोर्ट्स, एक एक शब्द ध्यान से सुनना, कि फ्रॉम वेरियस गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल रिपोर्ट्स it is estimated that currently there are around 5 crore children who are into school system who have yet not achieved FLM. समझे सिचुएशन? आप सिर्फ एबीटी या एबिकस स्कूल के बारे में मत सोचो, यहाँ तो सब कुछ बहुत अच्छा होगा, बट पूरे देश के बारे में जब हम सोचे तो आज स्थिति ये है कि जो बच्चे स्कूल में हैं, बिकॉज आज भी देयर आर स्टूडेंट्स हु आर आउट ऑफ स्कूल, बट जो स्कूल में है उनमें से अराउंड 5 करोड़ चिल्ड्रन ने FLM अचीव नहीं किया.
किसकी गलती? मेरे हिसाब से तो हमारे बच्चे तो स्कूल में आते हैं, और अगर आप स्कूल का रिकॉर्ड देखो तो साथ में 200 दिन उसकी अटेंडेंस है रिकॉर्ड के मुताबिक। टीचर भी 200 दिन आया है। It's a really serious matter, and इसीलिए now this document says that entire machinery should be geared up to prioritize FLL, कि पूरे देश में हर एक स्कूल में, इसलिए उनका एक नया स्कीम आया जिसका नाम दिया निपुण भारत। सुना होगा ये तो भाई? हाँ, निपुण भारत, वो भी एक एक्रोनिम है। फुल फॉर्म मालूम है किसी को? नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। अब यहाँ बार बार जो लिखा है रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग, देयर आर स्टूडेंट्स हु आर एबल टू रीड, पढ़ तो लेते हैं बट वो क्या पढ़ा वो समझते नहीं। और आपको भी मालूम है कि समझना कितना इम्पोर्टेंट है, सिर्फ पढ़ लेना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो पढ़ने के बाद आप कितना उसको समझते हो, दैट इज इम्पोर्टेंट। साबुद्दीन भाई राठौड़ ये गुजरात के बड़े अच्छे ऐसे तो लिटरेचर के आदमी है, एंड ही वाज अ स्कूल टीचर। तो बहुत अच्छी तरह से बोलते हो, आप कितना खाते हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, पर कितना डाइजेस्ट कर सकते हो वो इम्पोर्टेंट है। उसी तरीके से आप कितना पढ़ते हो वो इम्पोर्टेंट नहीं, बट वो पढ़ने के बाद कितना समझते हो। इन्होंने जो प्रेयर आई उसमें से कितनी चीज़ हम समझे, इम्पोर्टेंट वो है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे अभी 2 स्लाइड आगे निकल जाओ। FLN वाला पूरा यही है कि बहुत सीरियस इशू है। इसके बाद वाला जो वो 5 करोड़ वाला नंबर है कि 5 करोड़ बच्चे ऐसे हैं आज देश में। अब क्या किया जाए? बैठना तो है नहीं, ये स्ट्रेटेजी डायरेक्टली आपको एप्लीकेबल नहीं है, तो बदल गया। बट देन 4 स्ट्रेटेजी बताइए। पहले सबको इसको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दो। दूसरा, वो निपुण भारत करके योजना लेकर गवर्नमेंट ने ऑलरेडी कर दिया। गवर्नमेंट स्कूल की किसी टीचर को आप जानते हो तो वो यही करे, क्या करते हो? तो आजकल निपुण भारत का काम चलता है। मीन्स ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई करके उनको मेक श्योर कि दे आर एबल टू रीड, दे आर एबल टू परफॉर्म सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशंस। टीचर की वैकेंसी जहाँ पे है वो वैकेंसी है, वहाँ टीचर्स भरो और नई वैकेंसी क्रिएट करो। आखिरी वाली कॉलम है, वहाँ लिखा है PTR 1:, आखिरी वाला जो बुलेट है उसमें PTR 1:25 होना चाहिए। इनफैक्ट मुझे मालूम है, मैं ही सिखाता हूँ, प्रेजेंटेशन ऐसा नहीं होना चाहिए। देयर शुड नॉट बी मोर देन 30 वर्ड्स इन अ स्लाइड, पर इसमें थोड़ा ज़्यादा था क्योंकि चारों एक साथ में लाना है। इसीलिए करंटली आपको मालूम है देश में व्हाट इज द आइडियल प्यूपिल टीचर रेशियो? कितने बच्चों के लिए एक टीचर होना चाहिए? आइडियल प्यूपिल टीचर रेशियो 30, ठीक है, 1:30 इज आइडियल। 2000 से पहले क्या था वो मालूम है? 2001 से पहले इट वॉज 1:40। 2001 साल मैंने क्यों बोला, इसका कुछ इम्पोर्टेंस मालूम है? सॉरी, हाँ, 2001 से उन्होंने कंट्री में सर्व शिक्षा अभियान करके प्रोजेक्ट लगाया। तो सर्व शिक्षा अभियान का मतलब भी कोई शिक्षा फॉर ऑल। ठीक, तो सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत ये सोचा कि इतने सालों से, मैं जो पहले आपने बताया था कि केप्ट ऑन शिफ्टिंग टारगेट, तो वही था कि ये प्यूपिल टीचर रेशियो कम करेंगे तभी ठीक होगा। तो इसीलिए 1:40 में से 1:30 किया। यहाँ लास्ट बुलेट में बोला है कि सर्टेन डिस्ट्रिक्ट विच आर डिसएडवांटेजेस डिस्ट्रिक्ट, bring down this pupil teacher ratio and make it 1:25. ज़्यादा टीचर रिक्रूट करो, पर अल्टीमेटली क्लासरूम आप ये सब फैसिलिटी करो, बट ये सब फैसिलिटी के साथ साथ व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज हैविंग टीचर इन क्लासरूम। तो वो था कि सबसे ज़्यादा टीचर्स को रिक्रूट करो। तो एक सेकंड जो बहुत फंडामेंटल प्रिंसिपल है जो पूरे देश के स्कूल की शिक्षा के बारे में बात करूँ तो कि ये FLN एक बहुत गंभीर इशू है, द कंट्री हैज टू कम आउट। सेकंड, आपको मालूम होगा कि हमारा जो फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है उसका मेजर क्रिटिसिज्म इज कि इट्स अ वेरी रिजिड सिस्टम, बहुत रिजिड स्ट्रक्चर है।
जून जुलाई में एडमिशन लेना है, इतने सब्जेक्ट्स पढ़ना है, एग्जाम होगी, अगले साल आगे जाना है। और जो पेपर हमने तय किए, जो सिलेबस, जो सब्जेक्ट, वो ही पढ़ना है। Now this policy talks about giving them flexibility. Let student decide कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। अब इमेजिन करो कल यहाँ स्टूडेंट डिसाइड करे अलग अलग प्रकार के सब्जेक्ट पढ़ना। How many teachers will be required to teach them? One major challenge आएगी वो उसका सॉल्यूशन क्या होगा? उसका एक सॉल्यूशन एटलीस्ट एट हायर एजुकेशन लेवल करंटली इज MOOCs, MOOC and small s. Capital M, capital O, capital O, capital C. MOOC and then small s. Massive open online courses. भारत के बहुत अलग अलग प्लेटफॉर्म है, मेजर प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म, वहाँ पे ये सब कोर्सेज अवेलेबल है। स्टूडेंट्स वहाँ से लर्न करके वहाँ से रिजल्ट लेके आएंगे और यहाँ उनका रिजल्ट इंकॉर्पोरेट हो जाएगा। वो हायर एजुकेशन है इसलिए मैं उसकी बात नहीं करूँगा, बट देन गिविंग देम चॉइस एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अब नेक्स्ट स्लाइड में बोलता है नो हार्ड सेपरेशन। अभी करंटली हमारा क्या है कि वी हैव हार्ड सेपरेशन। पहला सेपरेशन है बिटवीन डिफरेंट स्ट्रीम्स, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स। कल अगर यहाँ बच्चा बोलेंगे उसको साइंस का बच्चा फिजिक्स के साथ साथ उसको इकोनॉमिक्स लेना है, तो दिस पॉलिसी सेज गिव देम चॉइस। फिजिक्स के साथ उसको ब्यूटी पढ़ना है, पढ़ने दो। हिंदी के साथ उसको मैथमेटिक्स पढ़ना है, पढ़ने दो। ओके, तो वन इज ये जो सेपरेशन रणछोड़ भाई ये दिखाता है आप मुझे थसेंगे भी दिखना, बट नाउ दिस इज गोइंग टू बी द फ्यूचर बिकॉज एनईपी टॉक्स अबाउट दिस ओनली। ठीक है, तो वन इज के ये वाला हटा दो। दूसरा अभी करंटली हम लोगों का है ना एकेडमिक विद करिकुलर एंड को करिकुलर में भी वी हैव सेपरेशन। हम लोगों का माइंडसेट क्या है, ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर डूइंग गुड इन करिकुलर एक्टिविटीज दे आर गुड, but there are many students who are doing excellent in the other aspect, उनका इतना इम्पोर्टेंस नहीं रहता है। तो ये भी एक हमने दीवार बना दी है, बोला ये दीवार है तोड़ दो। थर्ड एक और है जो मैंने अलग वोकेशनल अलग इंक में लिखा है, वो समझना बहुत इम्पोर्टेंट है कि there's a boundary between academic and vocational stream. वोकेशनल में फिर से आपको थोड़ा हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में ले जाऊंगा। 1977 इन अवर कंट्री, जैसे वो बोला एक पॉलिसी 68 देन 86, ऐसा 77 में कंट्री ने ईश्वर भाई पटेल कमेटी बनाई थी। ये ईश्वर भाई पटेल कमेटी ने रेकमेंड किया था, दैट रेकमेंडेशन वाज वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन अवर कंट्री। जैसे प्राइमरी एजुकेशन के लिए बोला यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन एंड देन वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस आप लोग जब स्कूल में पढ़ते होंगे तब एक सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ था, SUPW, या बच्चे थोड़े और पढ़ा होगा ये सब्जेक्ट के बारे में सुना होगा, सुना है SUPW, सोशली यूजफुल एंड प्रोडक्टिव वर्क। किसी ने लंबा चला नहीं, रीजन्स आर मेनी एंड वन ऑफ द रीजन्स अकॉर्डिंग टू मी एंड अकॉर्डिंग टू रिसर्चर्स इज नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ वोकेशनल कोर्सेज बाय द सोसाइटी। उसका भी दूसरा एग्जाम्पल होता है, सोसाइटी में आज भी जो वोकेशनल कोर्स वाला है ना उनका एक्सेप्टेंस ज़्यादा नहीं है। जैसे इन अवर कंट्री इन एवरी डिस्ट्रिक्ट देयर इज एटलीस्ट वन ITI, IIT नहीं, ITI, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन। हर एक कंट्री में, हर एक स्टेट में एक ITI है, और जो बच्चा ITI में से कोई भी कोर्स पढ़ता है उसका प्लेसमेंट श्योर हो जाता है, नौकरी मिलना बिल्कुल निश्चित है। हम में से किसी ने हमारे भाई बहन बेटा बेटी को ITI में पढ़ाया?
यहाँ BA आर्ट्स में भेजेंगे, मालूम है कि इसके बाद नौकरी मिलेगी कि नहीं, कोई गारंटी नहीं है। BCom करवा लेंगे, MCom करवा लेंगे, है ना। वहाँ ITI में गारंटी है आपको, वहाँ जाओगे नौकरी पक्की है। बट क्योंकि वो वोकेशनल कोर्स है, वोकेशनल कोर्सेज को थोड़ी वैल्यू हमने पहले से सोसाइटी में कम दी। तो ये 2 एविडेंस है कि ये वोकेशनलाइजेशन को हम लोगों ने ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं किया। नाउ दिस पॉलिसी सेज कि ये जो दीवार बनाई है इसको तोड़ दो, एंड इसीलिए उसका वन ऑफ द मेजर रिकमेंडेशंस इज 6th स्टैंडर्ड से इंटर्नशिप शुरू करो बच्चों की। 6th स्टैंडर्ड थी, अभी इंटर्नशिप शुरू करो और वहाँ पे कुछ वोकेशनल चीज़ें इनको सिखाओ बच्चों को। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग एक अलग अलग साइलोज बना दिया, अलग अलग बाउंड्रीज है, तो बाउंड्रीज को तोड़ के बच्चों को उनकी जो चॉइस है उस प्रकार के कोर्स कर देते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में कुछ स्टैटिस्टिक्स है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स है, अगर देखना है तो। नेक्स्ट 2000 का साल इसीलिए लिया कि उस वक्त वो सर्व शिक्षा अभियान इम्प्लीमेंट हुआ देश में। वहाँ से देखो नंबर ऑफ स्कूल अराउंड 10 to 11 लैक्स था, आज वो 15 लाख के करीब पहुँची देश में नंबर ऑफ स्कूल्स। अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ टीचर्स भी बढ़े। बट जो नेक्स्ट 3 कॉलम है कितने गंभीर कॉलम थी। 2000 में देश में देखो ड्रॉप आउट किया था। ड्रॉप आउट का मतलब एक बार स्कूल में तो आ गया लेकिन कुछ कारण से छोड़ के चला गया। अब देखो वो प्राइमरी मीन्स ग्रेड 1 to 5, और प्राइमरी मीन्स ग्रेड 6, 7, 8 एंड सेकेंडरी 40, 52 एंड 66% बच्चे छोड़ के चले जाते थे। और लास्ट वाला बताता है एरिया मीन्स नेट एनरोलमेंट रेशियो। नेट एनरोलमेंट रेशियो मीन्स इस उम्र के जो बच्चे हैं उसमें से हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इनटू स्कूल। तो आउट ऑफ एवरी 100 देयर वर ओनली 82 स्टूडेंट्स इनटू द स्कूल। हर 100 में से 82। ओके, इसका मतलब आउट ऑफ एवरी 100 18 स्टूडेंट तो स्कूल में थे ही नहीं, और जो आते थे उनमें से आइदर 40, 52 या 66% छोड़ के चले जाते। अब इतने सालों की कोशिशों के बाद स्थिति अभी आखिरी वाला देखो, इट इज मच बेटर। ड्रॉप आउट ऑलमोस्ट नाउ वी आर वेरी क्लोज टू 0। पूरे देश का फिगर है, कोई एक स्टेट का नहीं, एंटायर कंट्री। नंबर ऑफ स्कूल, नंबर ऑफ टीचर बढ़ाया। तो आखिरी वाला है प्रोजेक्टेड, वहाँ मुझे डाउट है, बट ये मैंने गवर्नमेंट के रिपोर्ट से लिया है। नेक्स्ट स्लाइड में इसका सोर्सेज बताता हूँ मैं कहाँ से लिया। नेक्स्ट स्लाइड, ये इसके सोर्सेज है, ऑल गवर्नमेंट रिपोर्ट्स है, मिनिस्ट्री के रिपोर्ट से लिया है। बट बाकी तो मेरा तो अभी अंडरस्टैंडिंग था कि नाउ NER वी आर वेरी क्लोज टू 100, ऑलमोस्ट ऑल स्टूडेंट्स आर इनटू द स्कूल। बट वो नंबर थोड़ा आई डिड टू चेक। चलो नेक्स्ट, एंड स्टिल टॉकिंग अबाउट NEP। क्या ये बताने वाली बात है? बट देखो फैक्ट इज आज ये हो रहा है कि थिंकिंग इज नॉट एम्फेसाइज्ड, largely it is rote learning. Rote learning तो सुना है ना? Rote learning is learning without understanding. बस कैसे भी करके बाय हार्ट कर और एग्जाम के दिन तक याद रखो। And this, in fact, this throws a very serious light on our current examination and entire education system. Current examination system हमारी largely ऐसी है कि मैं उसको थोड़ा अलग तरीके से एक डेफिनेशन दूंगा इंटेलिजेंट एंड अनइंटेलिजेंट स्टूडेंट का। इंटेलिजेंट इज द वन हु फॉरगेट्स आफ्टर द एग्जामिनेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट करंट सिस्टम में, एंड पुअर अनइंटेलिजेंट इज द वन हु फॉरगेट्स बिफोर एग्जामिनेशन। बेचारे को वो उस समय तक याद नहीं रहता, बाकी इन आइदर केस दे आर फॉरगेटिंग, बट एन इंटेलिजेंट फॉरगेट्स आफ्टर द एग्जामिनेशन, अनइंटेलिजेंट फॉरगेट्स बिफोर द एग्जाम। तो हमने उसको बता दिया कि ये तो हमारा एग्जाम बस्ती है। But there has to be emphasis on thinking and conceptual understanding. Conceptual understanding में फिर कोई और दिन ज़्यादा बात करेंगे, but it is most important.
देयर आर रिसर्चेज में अगर सिर्फ साइंस सब्जेक्ट की बात करूँ तो कंसेप्चुअलाइजेशन कम है बच्चों में, मिसकंसेप्शंस ज़्यादा है, रिसर्चेज है। और मिसकंसेप्शंस के सोर्सेज पढ़ा तो सोर्सेज में वन मेजर सोर्स आता है टीचर। टीचर ही को पढ़ाता है, हार्ट शरीर में लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट में नहीं है, सेंटर में स्लाइट लेफ्ट है ना। इवेपोरेशन के लिए हीट जरूरी है। पोछा लगाते हो, कहा गर्मी देते, वो पानी कहाँ गया? तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि एक कंसेप्चुअल लेवल पे ले जाना है, बच्चों को ये समझाना है। बट अनफॉर्चुनेटली कंसेप्चुअलाइजेशन ना होके मिसकंसेप्शंस ज़्यादा होता है। क्योंकि मैं साइंस वाला हूँ, मैंने एक दो छोटे छोटे एग्जाम्पल साइंस के दिए, बट ऑलमोस्ट इट इज देयर इन ऑल द सब्जेक्ट्स। तो एक थोड़ा कलर गलत आ गया उसमें। फिर आगे जाए तो क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, ये सब चीज़ इनको सिखानी है। आगे वाली एक स्लाइड में इस सब के बारे में फिर से आएगा। अब प्लीज ट्राई टू रिकॉल योर क्लासरूम। आप सबके अपने अपने आपके क्लासरूम में हाउ मच टाइम यू गिव देम इन ऑर्डर टू थिंक, in order to think critically, in order to think creatively, and in order to help them take their own decisions. सोचना लार्जली हमारा तो क्या है, एग्जाम में इस प्रकार का आता है। इसीलिए अगर ऐसा क्वेश्चन है तो ये आंसर लिखो, ऐसा क्वेश्चन है तो ये आंसर लिखो। ये इक्वेलियर रखो वैल्यू वाला। ये देखो पहली पॉलिसी में भी था वैल्यू वाला, ये भी है, आज भी है। और आज शायद भारत ने आज तक जो विटनेस ना किया हो उस प्रकार की स्थिति से अभी वी आर पासिंग। रिसेंटली 1-2 महीने पहले अहमदाबाद की एक स्कूल में, आपको मालूम है, 7th या 8th स्टैंडर्ड के बच्चे ने किसी और को मार दिया। और ऐसे तो देयर आर एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल। एक बहुत जिसे मुझे न्यूज़पेपर में पढ़ने से मुझे दुख हुआ था वो दशरथ भाई, नॉर्थ गुजरात का एग्जाम्पल है। 2-3 महीने पहले न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा, क्योंकि अभी मैं गांधीनगर हूँ तो वहाँ का न्यूज़पेपर। फादर का डेथ हुआ। अब यहाँ गुजरात में एक ऐसी मान्यता है, अगर 3-4 भाई है तो फादर के डेथ के बाद बाकी सब जो मुखाग्नि देना और वो सब बड़ा लड़का करेगा, मदर है तो छोटा लड़का करेगा। यहाँ पे ऐसी एक मान्यता है। अब अनफॉर्चुनेटली वो फादर पिछले 1-2 सालों से बीमार करते थे, तो बड़े भाई ने वो उनकी ख्याल नहीं रखा था वो फादर का। तो फादर वॉज स्टेइंग विद द यंगर ब्रदर। तो यंगर ब्रदर ने नेवर केम टू इवन सी के फादर की क्या स्थिति है। डेथ हुआ, वो आ गए वहाँ पे। जब डेड बॉडी को लकड़ी पे लगा दिया तो बोला कि मुखाग्नि मैं दूंगा। बड़ा भाई बोलता है, छोटा भाई बोलता है 2-3 सालों से तुम दिखे ही नहीं थे, वो तो मेरे साथ ही नहीं, मुझे सब कुछ मालूम है, तो मेरा अधिकार बनता है। जब सॉल्यूशन नहीं मिला तो बड़े भाई ने ऐसा एक सजेशन दिया, बॉडी को 2 टुकड़ों में काटेंगे। फैक्ट है कि अभी 3-4 महीने पहले की बात। और ऐसे तो कितने अनगणित एग्जाम्पल है। किसी वाइफ के बॉडी के 26 या 36 पीस मिलेंगे फ्रिज में, कोई जगह पे हस्बैंड को वहां से गिरा दिया, क्या तो कहाँ वेर आर वी नाउ हेडिंग टुवर्ड्स। और उसमें मैं मानता हूं कि वी हैव टू प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल समाज में। क्या, क्योंकि व्हाट दे सी इज टोटली डिफरेंट। व्हाट वी प्रीच एज अ टीचर, व्हाट वी प्रीच इज समथिंग एल्स, बट व्हाट दे सी इन द सोसाइटी इज समथिंग वेरी वेरी डिफिकल्ट। 3-4 दिन पहले मैं एक IAS के पास बैठा था, तो इन्होंने बताया उत्तर प्रदेश में एक बहुत सेंसिटिव IAS अधिकारी थे, बहुत सेंसिटिव। और उनको बड़ा दुख होता था कि बहुत ज़्यादा करप्शन IAS अधिकारी द्वारा होता है, तो उनको दुख होता था। तो उन्होंने सिमिलर थिंकिंग वाले IAS अधिकारियों का एक ग्रुप बनाया और बोला कि हर साल तो सबसे भ्रष्ट अधिकारी है वो 3 अधिकारी का नाम डिक्लेयर करेंगे, सबसे भ्रष्ट वालों का।
अब मैं उस समय की कौन सी पॉलिटिकल पार्टी थी वो बात नहीं करूँगा, लेकिन नाम डिक्लेयर किया, 6 महीने के बाद जो सबसे भ्रष्ट थे ना उनको चीफ सेक्रेटरी बनाया गवर्नमेंट। What I am trying to say is कि एक तरफ से हम बोले कि ऐसा नहीं करना चाहिए, but in the society what they say is totally different. हम संयम रखने की बात करें, जब ट्रैफिक जाम हो एक को ओवरटेक करके आगे इस तरीके से चले जाएंगे, ठीक है। कोई दुकान में हम कुछ लेने के लिए खड़े हो, हम क्यों में खड़ा है, तो पीछे से आके बोलेगा मुझे 10 समोसा पहले दे दो। तो दिस इज समथिंग आई थिंक आवर कंट्री वाज नोन फॉर। वैल्यू, रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर, रिस्पेक्ट फॉर वीमेन। देखो भारत में तो इसके लिए जाना जाता था, लेकिन आज कहीं न कहीं हम लोग भटक गए हैं। तो नाउ देयर इज अ टाइम वी हैव टू वेरी सीरियसली टेक। जो आगे मैं बता रहा था, नॉट ओनली कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव के साथ साथ अफेक्टिव डेवलपमेंट, बिकॉज ऑल दिस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ हार्ट, इमोशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक चीज को अरे इमेजिन करो, नरेंद्र मोदी जी को स्वच्छ भारत अभियान लाना पड़ता है कि देश को स्वच्छ रखो। क्या कोई ये जरूरी मुझे को कहने जैसी बात है? हम सबको मालूम है द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस। इंग्लिश वाले तो ये भी बोलते हैं क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, पर फिर भी कुछ भी करके कचरा वहाँ पे ही फेंकना है। और हमारे गुजरात में जो एक और अच्छी चीज़ है वो बराबर गुटखा खाओ। लुक एट दिस, ऑल दिस वैल्यूज को डॉक्यूमेंट में लिखा है कि 100 वैल्यूज को ना इट्स हाई टाइम। हाँ, बट इसके लिए हम लोगों को वो संयम रखना पड़ेगा। संयम कैसा? ऐसा नहीं कि मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ, मैं भी कभी कभी तेज कर दूंगा, नहीं, क्योंकि बच्चे हमें देख के करेंगे। तो टीचर को तो एटलीस्ट वो ही सर्वगुण संपन्न होना चाहिए टीचर, ठीक है। इनके कपड़े भी ठीक होने चाहिए, सब कुछ आपको मालूम है। बच्चे पेरेंट्स की बात नहीं, मेरा बेटा भी नहीं सुनता था, अभी मेरा ग्रैंडसन भी मेरी बात नहीं सुनता है। टीचर ने कुछ भी बोला वो सुनना है। तो इमेजिन करो कितना इम्पोर्टेंट रोल आपका है। एक एक चीज में देखो, बट फाइन थोड़ा और आगे लैंग्वेज के बहुत सारे, मैंने 12 रिसर्च कोट किया है, बट आई विल स्किप ऑल 12 स्लाइड्स। लैंग्वेज एस्पेशली मदर टंग में लैंग्वेज पढ़ाना, फर्स्ट फ्यू ईयर्स मदर टंग वाला। पर आजकल वही अभी ही रणछोड़ भाई बताते थे, पेरेंट्स नहीं, प्रकाश भाई ने बताया, पेरेंट्स इन्होंने काउंसलिंग लेकर रखा था कि CBSE में ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, लेकिन पेरेंट घर से तय करके ही आता है मुझे इसमें ही पढ़ाना है। बट समझाना होगा। बाकी सेवरल रिसर्चेज, एक आपके पास स्लाइड रहेगी, जब फुर्सत मिले 12 रिसर्चेज कोट किया है, उसको पढ़ लेना। 12 स्लाइड पूरी जाने लगी एक एक करके। बट लैंग्वेज से इम्पोर्टेंस जो मिला है वो आगे एक एक करके जाने दो, कि जहाँ पे मदर टंग से बच्चों से बात होती है, उनका क्लासरूम पार्टिसिपेशन अच्छा होता है, अटेंडेंस अच्छी होती है, इनका स्ट्रेस लेवल कम होता है, अचीवमेंट अच्छी होती है, सोशल एडजस्टमेंट अच्छा होता है। नेशनल इंटरनेशनल लेवल की स्टडी है। टोटल 12 नंबर आएगा, फिर जाने दो। अब तो देखो, इसीलिए ये पॉलिसी के आधार पे इंडिया में इवन हायर एजुकेशन ऑल्सो वी हैव स्टार्टेड ऑफरिंग इनटू डिफरेंट रीजनल लैंग्वेजेस। इंजीनियरिंग और मेडिसिन भी वो गुजराती या मराठी में पढ़ेगा। उसके लिए किताब है जो ऑलरेडी इंग्लिश में अवेलेबल है, वो किताबों का ट्रांसलेशन शुरू करवा दिया देश में, कि बुक्स इनके लिए ट्रांसलेट करके वो करो। ये लास्ट है, इसके बाद नेक्स्ट वाली स्लाइड आएगी। ये अभी आप लोगों को, हाँ ये भी फाइन, बट मैंने ये लास्ट वाला बड़ा बोल्ड करके लिखा है, बच्चों को ये सिखाना है हमें रेजिलियंस। और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल वो सुसाइड टेंडेंसी बहुत बढ़ती है, विड्रॉल हर जगह से विड्रॉ करना है। अरे मुझे तो सर बड़ा दुख होता है, लेकिन लोग क्या बोलते हैं, मैं तो 6 महीना डिप्रेशन में था ना। डिप्रेशन मुझे समझ में नहीं आता, बट बोला मैं तो डिप्रेशन में था। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर MSc से किया हुआ एक लड़का, आई नो हिम, 3-4 सालों से कुछ नहीं करता, उनके बाप बेचारे इतने लाचार है, क्या करें। लड़का डिप्रेशन में चला गया, जैसे कोमा में चला जाता उससे जैसा। तो वी हैव टू टीच देम दिस रेजिलियंस।
बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसीलिए मैंने उसको बाकी सबसे थोड़ा ज़्यादा बिग फॉर्म में किया है। बाकी टीम वर्क ये सब तो जरूरी है, और लाइफ स्किल इसके बाद वाले में वो 10 लाइफ स्किल है ना, WHO ने और उन्होंने दिया वो है, बट वो शायद आप सबको मालूम है, मैं इसमें बात नहीं करूँगा। उसमें थिंकिंग वाली स्किल है, सोशल स्किल्स है और नेगोशिएशन या कोपिंग स्किल है। चलो नेक्स्ट। टाइटल में कुछ अलग लगता है आपको, ये बना था उस वाला शायद ये कलर अलग है, वो नहीं बोलो तो चलेगा। ये जो टाइटल दिखता है कुछ अलग है या सही लग रहा है? और की जगह पे ऑफ करूं तो मैं What we have been doing so far is assessment of learning. समझते हो? बच्चे ने जो सीखा है उसका ही असेसमेंट होता है। But now this talks about assessment for learning. उससे मुझे भी सीखना है, उसके आंसर को केयरफुली पढ़ो। आंसर को केयरफुली पढ़ोगे तो बहुत सारी चीज उभर के आएगी उसमें से। एक जो अच्छी चीज उभर के आएगी वो कि there are many students in our classroom who think out of box. जो हम नहीं सोचते थे शायद उससे भी अच्छा सोचेगा बच्चा। दूसरा, अगर मैंने गलत पढ़ाया है तो वो गलत भी वहाँ रिफ्लेक्ट होगा, और उधर से मुझे पता चलेगा ना व्हाट डू आई डू नेक्स्ट, है ना? तो इसीलिए नाउ इट इज टॉकिंग अबाउट असेसमेंट फॉर लर्निंग, और अभी तो NCERT नाउ इज करंटली वर्किंग ऑन असेसमेंट एज लर्निंग। असेसमेंट ऑफ लर्निंग था, असेसमेंट फॉर लर्निंग, एंड अभी आ रहा है नया टर्म असेसमेंट एज लर्निंग। असेसमेंट में भी बच्चों को इन्वॉल्व कर उसका वहाँ से लर्निंग होगा। ये अभी देयर इज अ थिंग लाइक डिफरेंस, ज़्यादा लिटरेचर अवेलेबल होगा तो we'll develop more understanding. But then currently now what is more important is assessment for learning. Okay? ये तो बोलने की जरूरत नहीं, हमसे ज़्यादा बच्चे यूज करते हैं, ठीक है? बट इसकी नेक्स्ट वाली 3 स्लाइड में कुछ भी नहीं बोलूँगा, आप सिर्फ पढ़ लो। नेक्स्ट स्लाइड, 3 स्लाइड आएगा कुछ। What our classrooms need is this, ठीक है? A beating heart. वही चाहिए ना क्लासरूम में, तो क्लासरूम में AI नहीं चाहिए, ChatGPT नहीं चाहिए, Gemini नहीं चाहिए, that will not work. What will work is a teacher. कौन सा टीचर? Who is sensitive enough to identify students' need. आज ये लड़की का चेहरा थोड़ा गंभीर है तो टीचर शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई। अरे हर रोज तो हंसते रहती थी, आज क्यों थोड़ी ऐसे बैठी? बस जाके सिर्फ इतना ही पूछो, बेटा क्या हुआ? इनफ, कुछ नहीं चाहिए बच्चों को। फाइन, अब नेक्स्ट इंसाइट में मैं नहीं बोलूँगा। पहले का आंसर तो नो है, nobody can replace a teacher. Fine. थर्ड ग्रेड है ना, इंटेलिजेंस विदाउट एम्पैथी, हाँ, कैनॉट इंस्पायर, कुछ नहीं कर सकता। चलो नेक्स्ट। देखो टाइटल कितना इंटरेस्टिंग टाइटल है ना? एजुकेशन इज रिलेशनशिप। बाप बेटे का संबंध वहाँ पे भी वही है। मैं गुरु हूँ, वो शिष्य। गुरु शिष्य का हम पहले से बोलते हैं, बट बात तो अल्टीमेटली वही है कि एक आप फादरली फिगर हो, पेरेंट्स जैसे हो, और वो बच्चे हैं। दैट रिलेशनशिप जो हम अपने बच्चे के साथ है, यहाँ पे भी ये सब मेरे बच्चे हैं। तो दैट रिलेशनशिप इज इम्पॉर्टेंट। इट इज नॉट ओनली ट्रांजेक्शन ऑफ द कंटेंट। आई मे बी एक्सेलेंट इन फिजिक्स, मे बी एक्सेलेंट इन इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, संस्कृत, फाइन, बट ओनली ट्रांजेक्शन इज नॉट इनफ, है ना? थोड़ा यहाँ पॉज करते हैं। रिमेंबर 3 गुड टीचर्स ऑफ योर लाइफ। नाम नहीं देना है, कोई भी याद करो जो बेस्ट टीचर हो आपके जीवन के।
और व्हाई डू यू कंसिडर देम एज बेस्ट टीचर? पहले थोड़ा सोच लो, फिर एक दो का जवाब ले गया। दूसरा वो भी हो सकता है वर्स्ट, पर उनकी बात नहीं करेंगे, ठीक है। बट देन 3 बेस्ट टीचर्स ऑफ योर लाइफ, जो आपको 3 इट कैन बी मोर ऑल्सो, पर सोचो कि वो ऐसे बताओ कि व्हाई डू यू कंसीडर हिम और हर एज द गुड टीचर या बेस्ट टीचर? उनके गुण बताओ, नाम भी अगर इफ यू वांट टू इंक्लूड यू कैन, तो सिर्फ गुण जानना जरूरी है। फिजिक्स टीचर है, आप फिजिक्स टीचर बोले। बेटी IIT में पढ़ी, IIT में मेरी बेटी पढ़ी है, BSc किया। ओहो, हमारे पेरेंट हुआ। सर जब मैं पेरेंट मीटिंग अटेंड किया था? नहीं, आपका हर्षद पटेल सर ने, लेकिन मैंने 1 साल हो गया। ठीक है, मैं थोड़ा सा अलग बात करूँगा अभी। कॉन्वोकेशन में जब मैं आया तब आप थे। ओके, मैंने अभी सर बड़ा करेज दिखा के पेरेंट मीटिंग करेंगे। हाँ, करेज चाहिए ना पेरेंट मीटिंग करने के लिए, एंड पेरेंट मीटिंग रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूशन वाली नहीं। मोर देन 100 पेरेंट्स ज्वाइन ऑनलाइन एंड 27 या 28 पेरेंट्स वहाँ आए थे, और ऐसे पूरा मेरा स्टाफ के सामने बिठाया था। ऑनलाइन भी है, आई वॉज रेडी कि कोई कुछ भी बम्बार्ड करेगा, बोलेगा सर आपके पास ये नहीं, आपके ढंग से नहीं करना, ये नहीं है, वो नहीं है। बट आई वॉज लकी, सब लोगों ने प्रेस किया। जब मैं B.Ed करती थी तब एक लेडी टीचर थे, मीना मैम। तब मेरी बेटी 2 मंथ की थी, तो जब B.Ed करती थी तब क्लास अटेंड करना, फिर सब होमवर्क करना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट रहता था, तो घर जाके मैं नहीं कर पाती थी। तो वो हर बार मुझे बुलाते थे और मुझे बोलते थे कि भी ऐसा करो, तू ऐसा कर, तेरे मुझे टाइम टेबल बना के देते थे। तो पूरी लाइफ में उनका जो टाइम टेबल वो आज भी मैं फॉलो करती हूँ, और इसीलिए मैं स्कूल में अच्छी तरह काम करता हूँ। मैत्री सेतु का थीम है, वही आया ना, केयर कंसर्न कमिटमेंट, वही केयर था। मैत्री सेतु का यही थीम है। बाकी देखो वो टीचर्स हैं कंटेंट में थोड़ा वीक होगा तो भी आप एक्सेप्ट कर लोगे। ओके, एनीबॉडी एल्स? बात तो यही है, बिकॉज दैट टीचर वाज केयरिंग फॉर हर, कंसर्न था। फिर एक कमिटमेंट था कि क्लास के बाद भी मैं बैठूंगा इसके साथ। और किसी को बताना है कि व्हाई डू यू कंसीडर हिम और हर एज गुड टीचर? कभी कैसे को बताते हैं जैसे लेकिन नाम को क्या टीचर रहते हैं हमारा वसावड़ा साहेब। એક જ એવા શિક્ષક છે જે ગણિત કેમ કેમ ભણાવવું એ ભણાવ્યું, એમ જ વસાવ્યું. So, what by this, what I simply want to say is, of course, I cannot be, or I cannot afford to be bad at my content. Right? I have to be excellent in my content. I have to have adequate knowledge and acquisition of all instructional skills. मुझे मालूम होना चाहिए कि कैसे एक्सप्लेन करना है, मुझे ये भी मालूम होना चाहिए कि कैसे ब्लैक बोर्ड में लिखना है या प्रेजेंटेशन बनाना है, मुझे ये भी मालूम होना चाहिए कि कैसे एग्जाम्पल देना है, ये सब मुझे मालूम होना चाहिए। बट उसके साथ साथ ये जो केयर कंसर्न कमिटमेंट है ना, जैसे मैंने आगे भी बताया ना कि आज इसका चेहरा उदास है, मुझे सिर्फ इतना ही बोलना है, बेटा क्या हुआ, 2 दिन से नहीं आई थी तो क्यों नहीं आई? आई के बिजली वाला करके एक डॉक्टर है भावनगर के, बहुत लिखते हैं, अभी एक उनका आर्टिकल मैंने पढ़ा। वो जब छोटा बच्चा था, आई के बिजली वाला, 10th स्टैंडर्ड की एग्ज़ाम थी, बहुत बुखार था उनको। वो जब एग्ज़ाम देने गए तो वो मीन्स ही वॉज टू ड्रॉप आउट ऑन डी कि नहीं होगा शायद, ठीक है। बट वही टीचर ने, एक टीचर ने बोला तू कर ले, फिर सीधे आगे तुमको बिठा देते हैं, पानी चाहिए तो तुम्हारे लिए पानी रखेंगे, सब कुछ करेंगे। और वो एक लेडी टीचर थी, जाके बस ऐसे ही कि तू बस तू कर, मैं तेरे पास सुनता। दैट वॉज इट। वो आई के बिजली वाला लिखते हैं अपनी किताब में। सो दिस इज व्हाट वी कैन डू। ये जो पावर ऑफ टीचर है ना, पावर ऑफ AI नहीं, पावर ऑफ टीचर, दिस इज द पावर ऑफ टीचर। बाकी आज आई के बिजली वाला कितने फेमस डॉक्टर है, उनकी किताबें पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। तो जब वो लिखते हैं कि यही बिकॉज ऑफ दैट टीचर। और आप सबके जीवन में ऐसे बहुत टीचर होंगे, आई एम श्योर। और व्हाट वी आर टुडे इज बिकॉज ऑफ आवर टीचर्स।
ऑफ कोर्स पेरेंट्स एंड देयर टीचर्स। तो अभी आप भी यू आर आल्सो टीचर्स फॉर समबडी, तो यू हैव टू प्ले दैट वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और वो यहाँ पे यही बता रहा है कि रिलेशन नॉट ओनली ट्रांजैक्शन ऑफ कंटेंट, कंटेंट तो बड़ा कुछ भी कर लेगा, वो जेमिनी भी बता देगी और वो जो चैट जीपीटी भी बताएगा, बट जो हम कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता, एंड दैट इज द ह्यूमन टच। इसीलिए वो बोलते हैं द ह्यूमन टीचर, HUMANE, ह्यूमन टीचर। ये भी मैंने बोला था, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, यू ऑल आर डूइंग, इफ नॉट ये फॉलो करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आगे बोला ना स्टूडेंट्स, हम जो करते हैं वो करेंगे, किस प्रकार के, टू दैट एक्सटेंट कि आपके जूते कैसे है, बिलीव मी। बच्चे वो भी, मैडम के पास ऐसे सैंडल है, मुझे ऐसा चाहिए, मैडम यहाँ कुछ ऐसा बॉल लगाती है, ऐसा चाहिए, समझे? तो फिर आपका बिहेवियर क्लास में कैसा है वो भी वो सीखेंगे, मेरा बिहेवियर अच्छा है तो वो भी सीखेंगे, समझे आप? चलो नेक्स्ट, अभी चैप्टर 5 अब और इसको भी निकाल दो, नेक्स्ट चैप्टर, दिस इज आई थिंक नाउ चैप्टर 5 ऑफ एक और ये भी निकाल दो। इस सब अलग अलग जगह पे AI वर्सेस टीचर, तो AI वर्सेस नहीं है, AI और टीचर साथ में कुछ काम हमारा, बट अल्टीमेट तो यही है कि व्हाट क्लासरूम नीड्स इज अ बीटिंग टीचर, हार्ट बीट जिसका जिंदा है, वो जो टीचर जिंदा है वही चाहिए। इसीलिए मैंने नहीं बोला, जब मैं आके बैठा था चेहरा बहुत उदास था आप लोगों का, खैर ये भी नहीं कि अभी सबके अच्छे हो गए। ये एक और प्रिंसिपल है, जो प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन के ऊपर एक और बड़ा 1 घंटे का क्लास हो सकता है, मैं आज वो नहीं करूँगा। इंक्लूजन 21 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी नाउ हैव बीन आइडेंटिफाइड, 2016 में आया RTWD, राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट। 20 नेक्स्ट स्लाइड में 21 डिसेबिलिटी लिखी है, सिर्फ एक बार पढ़ना है तो पढ़ लो। इस प्रकार के डिसेबिलिटी वाले बच्चे हमारे क्लासरूम में हो सकते हैं। इसमें 3 ब्लड डिसऑर्डर भी है, एक एसिड अटैक विक्टिम भी है। ये लेटेस्ट डॉक्यूमेंट है, कंट्री ने एक्सेप्ट किया कि ये 21 प्रकार की डिसेबिलिटी हो सकती है बच्चों में, एंड दे आर टू बी इंक्लूडेड, दे आर टू बी टॉट विथ नॉर्मल चिल्ड्रन, इनके लिए कोई अलग व्यवस्था नहीं। गलती से आ गया है, ये बुलेट ये इसके साथ बनाएंगे, इसको निकाल देंगे। MSc जो 14 है ना, 14 का नीचे थोड़ा डिस्क्रिप्शन दिया था मैंने मेरे लिए, क्योंकि मुझे वो बहुत नया काम लगा था। फाइन, चलो नेक्स्ट, ये है चैप्टर 5 ऑफ NEP, दिस इज अबाउट टीचर। बहुत 31 पॉइंट बताया है इसमें टीचर के बारे में, और जो आगे मैंने ऑलरेडी आई हैव टॉक्ड अ लॉट अबाउट टीचर, तो ज़्यादा रणछोड़ मैंने तो यहाँ करना शुरू कर दिया होगा कि एवरी टीचर एवरी ईयर विल हैव टू अंडरगो 50 hours of CPD program. CPD is Continuous Professional Development. 50 hours of CPD. फिर वो सब्जेक्ट में हो, पेडागोगी में हो, ऐसा NEP के ऊपर हो, टीचर को कुछ भी हो, but 50 hours and largely it will be on content and pedagogy. क्योंकि एक रिसर्च जो फाइंडिंग्स भी आता है ना कि पुअर टीचर कौन, वो केयर कंसर्न तो फाइन, but then the one who is not good at content, ये भी आता है। And believe me, there are many teachers. I may have done MSc with physics, but I am not able to explain to my students Stokes law properly. वो मेरा कंटेंट शायद में भी मैंने छोड़ दिया था या तैयार नहीं किया था, तो आज मुझे नहीं मालूम है वो, ये होता है। आप भी अपने आप थोड़ा रिट्रोस्पेक्ट करके देख लेना, कहाँ पे कितने स्ट्रॉन्ग हो, कौन से एरिया वीक है, उसके ऊपर स्टार्ट करके।
नेक्स्ट वाले में ये जो अलग अलग पॉइंट्स सब है वो 2-3 स्लाइड में है, पूरा एनईपी के डॉक्यूमेंट से ही दिया हुआ क्या क्या करना है वो टीचर के लिए। अभी जो टेस्ट है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट और ज़्यादा स्ट्रिक्ट होगा। ये सब वही पॉइंट है सर, उसकी सर्विस कंडीशन और सर्विस एनवायरनमेंट के रिलेटेड है, तो प्रोफेशनल डेवलपमेंट के बारे में है, यही जो सीबीडी उनके कैरियर मैनेजमेंट एंड प्रोग्रेशन, उसके ऊपर अभी कंट्री हैज कम अप विद अ न्यू डॉक्यूमेंट। रंजन भाई को दिवस થાય છે એમની જોડે એક કલાકનું સેશન કરાવજો। NPST नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स। अभी टीचर का भी बिगिनर टीचर से लेकर एक्सपर्ट टीचर तक की पूरी जर्नी होगी, उसको सैलरी के साथ लिंक करना या नहीं वो अभी एवरी स्टेट विल डिसाइड, बट NCE हैज कम अप विद दैट डॉक्यूमेंट known as NPST National Professional Standards for Teachers। तो आपके प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स होगा, उसके मुताबिक जितनी जितनी कॉम्पिटेंसी एक्वायर की एक हायर लेवल पे जाओगे। This is, I think, according to me, one good thing which this document, this policy has done। हम लोग है ना, ऐसा हो गया था इंडिया में, आई एम टॉकिंग अबाउट माइंडसेट, कि समथिंग विच इज नॉन इंडियन इज टू बी वैल्यूड मोर। आई रिपीट दिस स्टेटमेंट, है ना, एनीथिंग दैट इज नॉन इंडियन इज टू बी वैल्यूड मोर। केरला के ही बादाम या क्लोव अमेरिका जाए, वहाँ से मेरा कोई रिलेटिव लेके आए, वो बादाम मुझे अच्छी लगेगी। ये तो बादाम का एग्जाम्पल दिया, बाकी थिंक ऑफ अवर कंट्री, टेक एनी डिसिप्लिन, नॉलेज का कितना भंडार है, कोई भी थिंक ऑफ एनी डिसिप्लिन। मैं आपकी लाइब्रेरी में गया, आई वॉज वेरी हैप्पी, गिजू भाई बधेगा का फोटो देखा पहले, सामने की दीवार पे है, पहला फोटो है वो गिजू भाई बधेगा। आज हम जो पेडागोजी की बात करते हैं वो सब गिजू भाई बधेगा हैज प्रैक्टिस, बट वो क्योंकि गिजू भाई ने बोला नहीं, इट इज नॉट टू बी वैल्यूड, है ना। वही चीज फ्लैंडर ने बोला, नेड ए फ्लैंडर इन 1971, क्योंकि फ्लैंडर से बात आई तो वो मुझे अच्छी लगेगी, है ना। देख लो, तो ये डॉक्यूमेंट ने जो अच्छी बात करी वो कि वी हैव लॉट ऑफ नॉलेज। टेम्पल आर्किटेक्ट देखो इंडिया का, आज भी वी आर अमेज्ड कि कैसे वो इतने हैवी स्टोन ऊपर कैसे गए होंगे। उड़ीसा का मंदिर तो बिल्कुल मीन्स हर प्रकार की अजायबी वाला है, कि विंड की डायरेक्शन ऐसी है तो ध्वजा इस दिशा में जाती है, कोई शैडो नहीं होता दिन भर कभी भी। ये कोई साइंस टेक्नोलॉजी आर्किटेक्ट के नॉलेज के बिना थोड़ी हुआ है। सिमिलरली इन एजुकेशन, मैंने सिर्फ गिजू भाई बधेगा का नाम दिया, बट कोई भी देख लो आप, तो इट हैज टॉक्ड अबाउट कि जो हमारा नॉलेज है, इसीलिए आजकल अभी सब लोगों ने दे हैव स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट IKS इंडियन नॉलेज सिस्टम। अब वहाँ पे भी कुछ हमारे जो बिल्कुल हार्डकोर इंडियन थिंकिंग वाले हैं, उन्होंने तो और भी ऑब्जेक्शन उठाया, व्हाई इंडियन, इट शुड बी भारतीय नॉलेज सिस्टम, नॉट IKS, इट शुड बी BKS, भारतीय नॉलेज सिस्टम। फाइन, बात अलग, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, हमारी जो प्रैक्टिस है, नॉलेज है, गिजू भाई बधेगा की एक सिंपल किताब पढ़ लेना, यू विल गेट एवरीथिंग एज अ टीचर। दिमाग स्वप्न करके किताब है कि लेस देन 100 पेजेस पढ़ो, और उससे ज़्यादा एक और ऐसी ही किताब पढ़नी है तो चाइनीज़ किताब एक है तो चार, बस अच्छा लगता है कि बहुत लोगों ने पढ़ी है ना, दिमाग स्वप्न है तो चार। अब हमें वो उसको इन्वाइट करना है, जो गिजू भाई ने किया था, और तो चार में जो आचार्य कोबायाशी, हाँ, वो जो करते थे वो हमें करना है। बस अब 1-2 स्लाइड है, ठीक है। अब इफ यू हैव एनी क्वेश्चन तो मैं आई ट्राई टू आंसर। नहीं तो देखो, ये टीचर वाला तो टॉपिक ऐसा है कि जिसके ऊपर हम बहुत बातें कर सकते हैं। देयर आर सेवरल एग्जांपल्स, बहुत अच्छे टीचर्स के भी बहुत एग्जांपल है।
कोई भी, anybody, any question? Fine, then thank you very much, and special thanks to Ranchol Bhai and Prakash Bhai for inviting me here. Thank you very much, sir. Address and thoughtful reflection. Your words will surely guide and motivate us in our career and in our life. As we come to the end of the memorable morning, I extend heartfelt gratitude to our chief guest, respected management, teachers, and all participants who contributed to the success of the ceremony. May the bridge of Maitri Setu continue to connect minds, nurture compassion, and strengthen our commitment to serve with care and concern. Thank you everyone for your gracious presence and have a pleasant day ahead. Thank you so much.